Hello dear student, welcome you in this physics video. In today's video we are going to learn about errors in the measurement. So what is the meaning of the error and how many types of error do we have? So let us start over here first with this one, error. So what is the meaning of the error that we should to learn? Just to suppose that I have done any calculation and I got my answer, it is 4.5. This is my answer from any measurement. Okay, and when I checked its answer, so I found that actual I should have the answer, it is 4.9. Okay, so now what is happening over there? So there I'm looking that my value is little bit different from that actual value. Okay, so therefore there is a difference. So this is my measured value, and that it is little bit different from that actual value. Okay, so therefore how much is my error? So that's error, that how we will determine it. So this error, it is equal to that of actual value, or either it is had to be that of true value minus of this measured value which I have. Okay, so measured value. So thus I come to know over here how much is that error in my calculation. So what is error? It is the difference between this true value and that measured value. So this is said to be error. Now how many types of error do we have? तो error types कितने होंगे? So we are having over here, these are the three type of the errors. So one, it is said to be systematic error. Systematic error. And the second, it is said to be random error. And the third, it is over there, that of list count error. List count error. Okay, so that's over here that we are going to discuss over here about of these three errors. Okay, so it is systematic error, random error, and list count error. Okay, now let us start over here first with this systematic error. Which error are said to be systematic? So these error, they will have definite pattern. Okay, definite pattern. इधर मीन्स इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास एरर्स हैं, ठीक है, या तो ये पॉजिटिव होंगे, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो पॉजिटिव होंगे या तो फिर हमारे पास नेगेटिव होंगे. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जैसे हर एक वैल्यू को मतलब कि वो कॉन्स्टेंटली अफेक्ट करते रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट अस टू सी ओवर हेयर. ओके, जस्ट चेक ओवर हेयर दैट आई हैव दिस इज दैट स्केल. ठीक है, तो इस स्केल दिस इज ब्रोकन फ्रॉम हेयर. ठीक है, तो इसका जो हाफ पार्ट है हमारे पास यहाँ पर जो मेजरमेंट है 10 पार्ट, इट इज ब्रोकन ओवर हेयर. ठीक है, सो देयरफॉर इफ आई विल स्टार्ट माय मेजरमेंट. ठीक है, तो मेजरमेंट इफ आई डज ओवर हेयर ऑफ दिस लाइन. ठीक है, now how much is the length of this line? So we will find that it is going to be that of 4 centimeter. What we are known over there, that 0 is not included in this scale, that has separated from it. Okay, so that means whenever I will that's measure any lengths with the help of this scale, that time I have to subtract 1 centimeter from this. ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, हमारे पास स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 1 सेंटीमीटर से हो रही है. ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जब भी यहाँ पर आप कोई भी लेंथ मेजर करोगे, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. देयरफॉर एक्चुअल जो लेंथ होगी वो क्या होगी मेरे पास, दिस विल बी 4 माइनस 1, दैट इट इज 3 सेंटीमीटर. तो ये 3 सेंटीमीटर की होगी. ठीक है, सो इन एवरी रीडिंग यू विल फाइंड द सेम थिंग. हर रीडिंग में आपको हर एक मेजरमेंट जो आप इस स्केल से करोगे उसमें आपको 1 सेंटीमीटर कम करना ही है. ठीक है, तो 10 वी गेट दैट इट इज हैविंग अ डेफिनेट पैटर्न कि इसमें इसको माइनस होना ही है.
ठीक है। नेक्स्ट ओवर हेयर लेट अस टू लुक ओवर हेयर, ये मेरे पास एक वेइंग मशीन है, तो वेइंग मशीन विदाउट कीपिंग एनी वेट ऑन इट, इट इज शोइंग टू अस दैट देयर इज मास ऑफ 0.50 किलोग्राम। ठीक है, मतलब कि हमने इसके ऊपर कुछ भी प्लेस नहीं किया, बट स्टिल इट इज शोइंग दैट देयर इज द मास ऑफ 0.50 किलोग्राम। ठीक है, नाउ ओवर हेयर व्हेन आई विल प्लेस एनी ऑब्जेक्ट ऑन इट, ठीक है, मैंने क्या किया, इसके ऊपर किसी चीज़ को मेजर करने के लिए रख दिया। ठीक है, एंड नाउ इट इज़ शोइंग द मेजरमेंट ओवर देयर, इट इज़ 2.50 kg। ठीक है, तो ये हमारे पास व्हाट यू सपोज दैट इज दिस ऑफ 2.50 kg। ठीक है, क्योंकि इनिशियली जब ये नथिंग वाज प्लेस ऑन दिस फिजिकल बैलेंस, सो एट दैट टाइम electrical balance actually it is, so over there at that time it was showing 0.50 kilogram. Now with the weight it is showing 2.50, so how much is the mass of that object? So mass of object that you will find it is as 2.50 minus of this 0.50. Okay, so thus we will get it is of 2 kilogram, 2.00. Okay, this is the mass of the object. So we are looking over here every time whenever we will use this that electrical balance, we have to subtract this 0.50, we have to subtract 0.50. Okay, so thus we will get over there that mass of whatever our object, so that mass can be determined. So thus we are looking that in this example that constantly these error are going to affect every reading. So either it is in negative way or it is in a positive way. So let us look over here one more example. सो इट इज़ रिगार्डिंग टू द वर्नियर कैलिपर। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर हमारे पास क्या करता है, जो छोटी मेजरमेंट है वो परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो हमारे पास कितनी छोटी मेजरमेंट, यानी कि 0.1 mm जो हमारे पास लिस्ट काउंट है, इस छोटी मेजरमेंट को ये परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, नाउ ओवर हेयर वर्नियर कैलिपर में क्या होती हैं, दो स्केल होती हैं, एक स्केल जो है हमारे पास मेन स्केल और दूसरी स्मॉलर स्केल होती है, मूवेबल होती है। तो ये मूवेबल स्केल जो है हमारे पास होती है वर्नियर स्केल। ठीक है, जब हम वर्नियर कैलिपर को कम्प्लीटली क्लोज करते हैं, उसके दोनों जॉज एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट आते हैं। ठीक है, सो एट दैट टाइम लोअर जॉज जब उसके इन कांटेक्ट आते हैं, सो एट दैट टाइम क्या उसका मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो जो है वो सेम लाइन में आता है। ठीक है, इफ दे डू नॉट कम इन सेम लाइन, ठीक है, सो दैट मीन्स देयर इज द एरर। ठीक है, नाउ ओवर देयर अगर वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल के राइट साइड रह जाता है, ठीक है, सो दैट टाइम इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव एरर। इसका मतलब जब भी आप इस वर्नियर कैलिपर की हेल्प से यानी मेजरमेंट परफॉर्म करोगे, तो दैट टाइम यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस पॉजिटिव एरर। ठीक है, एंड ओवर देयर अगर ये जो जीरो है ये टू द लेफ्ट ऑफ मेन स्केल आती है, तो दैट टाइम इट विल बी नेगेटिव एरर। इसका मतलब हर एक वैल्यू के अंदर आपको जो यहाँ पे जितना भी नेगेटिव एरर है वो ऐड करना पड़ता है। ठीक है, सो दस वी गेट ओवर हेयर कि हमारे पास जो ये क्या बने, सिस्टम के अंदर एरर्स हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास इनको या तो पॉजिटिव करना है या फिर इनको नेगेटिव ही करना होता है। Now over here let us to learn over here that this systematic error, what are the sources of it, sources of systematic error। ठीक है, तो ये जो हमारे पास सिस्टमेटिक एरर्स हैं ये किस वजह से होते हैं, व्हाट आर द रीजन ओवर देयर सिस्टमेटिक एरर। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग दैट वी विल अंडरस्टैंड दिस इज रिगार्डिंग टू द इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, पहला हमारे पास क्या बन गया, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स बन गया। सो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होते हैं हमारे पास, सो इंस्ट्रूमेंटल एरर एज वी हैव टेकन वन ऑफ द एग्जांपल जिसमें स्केल जो था वो ब्रोकन था। ठीक है, तो उसमें मतलब कि 0 और 1 सेंटीमीटर के बीच में जितने भी डिवीजन थे देवर दैट डिपार्टेड फ्रॉम दैट स्केल। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास व्हाट इट बिकम्स ओवर देयर इंस्ट्रूमेंटल एरर। और सम ऑफ द टाइम व्हाट हैपन्स, जो डिविजन्स होते हैं स्केल के ऊपर दे आर नॉट विजिबल। ठीक है, सो एट द टाइम दैट एरर इट इज सेड टू बी एज इंस्ट्रूमेंटल एरर।
ठीक है। तो हमारे पास सिमिलरली ओवर देयर जैसे वर्नियर कैलिपर का 0 और जो उसकी वर्नियर स्केल का 0 था, दैट इज नॉट गोइंग टू मैच, ठीक है। सो देयरफॉर ड्यू टू ऑफ इट वी वर हैविंग द एरर्स इन द this vernier caliper. Okay, so thus we call that such type of errors, it is said to be instrumental error, ठीक है। so I will mention over here only particular that scale part broken. Second thing over there, that divisions are not visible. Okay, so such type of error that are included in instrumental error. Now the second, that it is taken to be as personal error. Okay, what is over there? It is personal error. Now personal means which is due to of ourselves, मतलब कि ऐसे error जो हमारी गलतियों की वजह से आते हैं, ठीक है। सम ऑफ द टाइम वी आर गोइंग टू लुक फॉर द रीडिंग, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, रीडिंग चेकआउट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है 4.23, ठीक है। लेट अस हैव दिस इज 4.23 एंड व्हाट वी सेड दैट देयर इज द रीडिंग ऑफ 4.2 और इट इज़ 4, नियरली कर दिया, 4 कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया कि 0.2 इट डजंट हैव एनी इम्पोर्टेंस, ठीक है, बहुत छोटी वैल्यू है। सो इसलिए क्या हो गया हमारे पास 4। जैसे हम मार्केट से व्हेन वी आर गोइंग टू परचेज एनी वेजिटेबल्स, ठीक है, तो उसमें 1 केजी से थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, नो प्रॉब्लम इन दैट वन, ठीक है, ओके, इट्स फाइन। तो इसलिए हमारे पास क्या हो गया, ये इस तरह के जो एरर्स है वो हमारे केयरलेस मतलब कि होने की वजह से जो है वो क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के एरर्स, सो सच टाइप ऑफ एरर्स विच इज़ ड्यू टू ऑफ आवर पर्सनल नेग्लिजेंसी, so we are going to call this as personal error. So this is the second type of that source of systematic error. Okay, so next is that which we are going to discuss, it is regarding to that of imperfection error. Okay, imperfection in experiment, ठीक है। तो इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट व्हाट डज इट मीन, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया हमारे पास, जैसे कुछ एक एक्सपेरिमेंट होते हैं, वो हमें क्या करना होता है, मतलब कि कुछ एक सर्टेन कंडीशन के अंदर ही परफॉर्म करने होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कैलोरी मीटर था हमारे पास, कैलोरी मीटर में हीट जो एक्सचेंज थे वो हम डिटरमाइन करते थे। व्हाट एट दैट टाइम वी वर सेइंग देयर इज नो एक्सचेंज विद द सराउंडिंग के साथ कोई भी एक्सचेंजेस नहीं होने चाहिए, ठीक है। सो दैट इट वाज अंडर द दैट कंडीशन दैट दिस एक्सचेंजेस शुड नॉट बी अलाउड विद द सराउंडिंग, ठीक है। तो इसलिए उसमें क्या था, एक हमारे पास लिमिटेशन लगाई गई थी प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए। अदरवाइज इफ यू विल नॉट फॉलो दिस, सो देयर विल बी द एरर्स इन द मेजरमेंट्स, ठीक है। सिमिलरली ओवर देयर हमारे पास जैसे सेकंड इसमें हम बात करते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू मेजर द वी वांट टू मेजर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस, ठीक है। आइस का मेल्टिंग पॉइंट हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। वट ओवर देयर दैट दिस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, it is going to change with the pressure. Okay, so if by chance that pressure will change in during this experiment, so what will happen, we will not able to find out the actual this measurement or actual melting point of that ice. Okay, so therefore it is said to be those situation or condition which is implemented for the verification of the experiments. Similarly over here that we can take this one, it is as for Ohm's law. Okay, so Ohm's law that we must know for this Ohm's law, for its verification we said that temperature and dimension they must be constant,
ठीक है। टेम्परेचर और वेरिएशन, जो टेम्परेचर और डायमेंशन थे वो क्या होना चाहिए थे, फिक्स होने चाहिए थे। इफ़ दे विल नॉट बी फिक्स, सो वी कैन नॉट वेरीफाई दिस वी इज डायरेक्टली टू आई। तो ये जो रिलेशनशिप थी दैट कैन नॉट बी verified. Okay, so thus we were having, these were those limitation which were put on that experiment, under which they have to performed. Okay, similarly if we are going to look over there, that some of the time it becomes natural, that नेचुरल एरर्स मतलब कि क्या हो जाता है, जो नेचुरल जो सर्कमस्टांसिस हैं उनके चेंज हो जाने की वजह से बनते हैं। जैसे एग्जांपल की वजह से हमारे पास जो टेम्परेचर इज़ नॉट सेम थ्रू आउट द ईयर, इट इज़ गोइंग टू चेंज। ह्यूमिडिटी इज़ नॉट सेम थ्रू आउट द ईयर, इट इज़ गोइंग टू चेंज। Okay, so over there that there is a rainy season, there is a winter season, there is this summer season. ठीक है, so we are known with one thing कि समर में क्या होता है, हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है, हाई टेम्परेचर। एंड ओवर देयर ये जो मेटल्स हैं, मेटल हाई टेम्परेचर में क्या करती हैं, एक्सपेंड्स करती हैं, ठीक है। तो ये इनकी क्या हो जाती हैं, डायमेंशन चेंज हो जाते हैं। सो इट मीन्स इफ़ वी आर यूजिंग that scale which is made up of metal, so what will happen, its division distance will increase, उसके जो डिवीजन है उनके बीच का जो गैप है वो गर्मियों में इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाई इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दैट नेचुरल फैक्टर, ठीक है, हाई हीट की वजह से। सो ओवर देयर हमारे पास सिमिलरली अगर उसको लेट अस सपोज दैट इट इज ड्यूरिंग द this rainy season, so lots of humidity in the air, so due to of it हमारे पास ये जो हमारे पास मीन्स जो डिवाइसेस हैं, ठीक है, तो उनमें दोबारा से क्या हो जाते हैं, ये जो एरर्स हैं, ठीक है, वो बन जाते हैं, ठीक है। सो दस वी आर गोइंग टू लुक ओवर देयर, जो टेम्परेचर है, जो नेचुरल कंडीशंस हैं वो क्या कर रही है, एक रिस्ट्रिक्शन लगा देती हैं on that upper measurement, so thus we call them as natural error. Okay, so that is going to be included in this imperfection in experiment. Now let us look over here about of this random error and list error. रैंडम एरर हमारे पास दिस वर नॉट डेफिनेट, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाते थे, दैट दिस वर इनडेफिनिट पैटर्न, ठीक है। तो इनका कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं होने वाला, मीन्स कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये कुछ भी हो सकते हैं, कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट रीडिंग में हमें ये एरर जो है वो ऐड करना पड़ रहा है, सेकंड रीडिंग में उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो एरर्स है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन सिस्टमेटिक एरर क्या था, या तो पॉजिटिव ही होता, नहीं तो पॉजिटिव नेगेटिव ही होता, ठीक है। सो दैट इज दैट प्रॉब्लम। नाउ व्हाई दिस रैंडम एरर इट अराइजेस, सो दिस अराइजेस ड्यू टू ऑफ आवर that personal problem. Okay, so personal that errors we are going to say over there. What is the reason behind of this random error? It is that personal error, नेग्लिजेंसी, फैटिगनेस, कई बार हम थक जाते हैं और थकने के बाद वी डू नॉट गिव केयर फॉर दैट मेजरमेंट, सो दस वी आर गोइंग टू नोट डाउन द रीडिंग्स रफली, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास वो रीडिंग समटाइम इट इज़ दैट मोर एज एक्चुअल और समटाइम इट इज़ लेसर एज दैट ऑफ एक्चुअल वैल्यू। ओके, सो दस इट इज़ पर्सनल एरर, ठीक है। So due to a personal error, that random error is going to arise and it do not have any definite pattern, so it could be positive or it could be negative, ठीक है। तो एक ही मेजरमेंट में हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव की हम इसकी बात कह रहे हैं, ठीक है। नाउ ओवर देयर हाउ टू ओवरकम दिस वन, तो ये जो रैंडम एरर है इसको कैसे रिमूव किया जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एलिमिनेशन मेथड की हम बात कर रहे हैं, एलिमिनेशन ऑफ दिस रैंडम एरर। तो रैंडम एरर को जब भी हमें एलिमिनेट करना है, सो वी शुड टू टेक ओवर देयर मीन वैल्यू, ठीक है। तो रैंडम एरर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, मीन वैल्यू को यूज़ करते हैं। मीन वैल्यू इन द सेंस दैट इफ़ वी आर गोइंग टू परफॉर्म एनी एक्सपेरिमेंट, सो वी विल टेक ओवर देयर इट्स 3 to 4 वैल्यूज, ठीक है। क्या करने वाले हैं हम इसकी, दैट वी विल टेक एट लिस्ट
3 to 4 reading, ठीक है, एंड वी विल फाइंड इट्स मीन। तो इसलिए हम उसका मीन फाइंड आउट करके जो वैल्यू बनेगी दैट वी विल यूज इट इज एज एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। सो ओवर देयर हाउ डू वी रिमूव दिस रैंडम एरर? तो रैंडम एरर को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, मीन में निकालते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आई हैव डन ओवर हेयर, मैंने फर्स्ट टाइम मेजरमेंट किया इट वाज x1, सेकंड टाइम मेजरमेंट किया x2, थर्ड टाइम मेजरमेंट किया x3, फोर्थ टाइम मेजरमेंट किया x4। now over there if I did this measurement for n time, okay, so then I have to divide it by n to count the total number. So divide it by n, so this will give us that mean value. So x bar, it is the mean value, or you will call it as that of mean, x mean, ठीक है। So this is that random error. So remember over there why we are taking the mean value, to remove this random error. और जो भी हमारे पास मीन वैल्यू आती है उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, इट इज़ द एक्चुअल वैल्यू, वी आर कंसिडरिंग इट ओवर देयर। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ द एरर दैट इट इज़ ऑफ लिस्ट एरर, लिस्ट काउंट एरर, ठीक है। लिस्ट काउंट एरर्स व्हाट आर दिस? तो लिस्ट काउंट एरर हमारे पास, जैसे सपोज करो आई एम हैविंग दिस इज द स्केल, ये मेरे पास एक स्केल है, ठीक है। हेयर इट इज 0 एंड दिस इज दैट फर्स्ट डिवीजन, हेयर इट इज सेकंड डिवीजन, हेयर इट इज थर्ड डिवीजन, इट इज द फोर्थ डिवीजन एंड इट इज द फिफ्थ डिवीजन, ठीक है। सो दिस इज 1 centimeter. Now look up over there. If I will have anything which is between this 0 and first division, let me to suppose I'm having this is the um, that measurement which is going to lie between this 0 and first division. Okay, so what you will write for this one? Because we are looking over here that it is that of, let us to take 10 division for this one, and it is 1 2 3 4 and 5. Okay, so how much is the list count of this one? It is having its list count of 1 mm. It is having list count of 1 mm. So over there that of, if its list count is 1 mm, then you can't measure the value which is less than 1 mm, ठीक है। उससे आप क्या कर सकते हो, ये जो क्या आप इससे जो हमारे पास 0.1 mm फाइंड आउट कर सकते हो, उससे छोटी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, यू कांट डिटरमाइन इट फ्रॉम दैट वन। क्या आप इससे 0.5 mm मेजर कर सकते हो, यू कांट डिटरमाइन दिस वन। ओके, सो देयरफॉर व्हाट इट बिकम्स देन, इट बिकम्स द लिस्ट काउंट एरर, ठीक है। सो ओवर देयर हमारे पास लिस्ट काउंट एरर दैट इट अराइजेस ड्यू टू द list count of the that apparatus which we are using. Okay, so this is all from my today's video in which we have discussed about of the errors. So thank you for watching.